Hello everyone and welcome to this video. In the previous video, I have shown you the completed financial model. In this video onwards, we will start and understand how to build the model from scratch cell by cell, step by step. So first of all, we need the latest filing of the company Apache Corporation. So I'll go to Google and here I will type Apache Corporation. Apache Corporation is the name of the company. You can also type Apache Corporation 10K or just Apache Corporation. Now this is Apache Corporation. These are investors. You can select the direct page for the company filings, or if you don't find the direct link, you can type 10K also. Enter. Now here investor.apache corporation, this is the direct link for company filings. Click on this and you will directly reach to the page where you have all the latest filings of the company. Not just latest but till date. All the files will be uploaded here. So here I will select 2020 and here I will select the annual report. Here this is the PDF file. Just click on this. Now come back here. Now instead of annual file, I also need the quarter file. So for that I'll select the quarter file. Say current reports. We have the quarter filings. Click on this. So for 2020 there is no quarter file available because the latest file is the annual report. So we will be using the annual report to prepare its financial model. So I have downloaded the annual report here. This is the downloaded annual report. Click on this and open it. Now this is the 10K form. 10K form is the form in which US companies which are listed in USA, they will provide the annual report. 10K is the name of the form in which they provide its annual details, right? After 10K we have 10Q. These are the two most important filings, 10K and 10Q. We have S1, S2, S3, S4, 8K, 20F, various other filings also. There is a separate video on introduction about all these files. So for this particular video, I'm not getting into the technical details of these different filings and what these filings will provide us. So in this video, we will focus our discussion only on 10K. So this is 10K. So press Ctrl F, total asset. Just find if you can find the balance sheet with the total asset. If you cannot, then we will change the keyword. Okay, with total asset, the balance sheet is not provided. We cannot find the balance sheet with the total asset keyword. So I'll search with current asset. So I can find my balance sheet here on page number 71. Now just above this, we have income statement on page number 68. Below this we have the statement called comprehensive income statement, and here we have the cash flow statement, then we have balance sheet, and at last next page we have statement of changes in equity. So the first statement that we have to extract into Excel is the income statement. तो पहले एक बार इनकम स्टेटमेंट पे चलते हैं. यहाँ पे हम ये इनकम स्टेटमेंट है. तो हम क्या करेंगे, हमें 3 साल का हिस्टोरिकल डेटा एक्सेल में कॉपी करना है. तो कैसे करेंगे? सो ओपन अ ब्लैंक एक्सेल फाइल. ओके, नाउ this will be the income statement. एंटर. इसको थोड़ा रीसाइज करेंगे कॉलम को. मॉडल बनाने से पहले आपको कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट में जो इनकम स्टेटमेंट दी है उसको पूरा एक बार स्कैन कर लेना चाहिए. अब जब आप स्कैन करोगे तो आपको सारे आइटम्स की डिटेल मिल जाएंगी, कंपनी एंड इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या आइटम्स दे रही है. ठीक है, उनका प्रोजेक्शन क्राइटेरिया भी आपको डिसाइड करना है. बट ये तो क्लियर है कि डाटा में इनकम स्टेटमेंट कॉपी करना ही करना है. तो इनकम स्टेटमेंट अब सबसे पहले क्या करेंगे, ये तीनों आइटम मैंने कॉपी किए, पेस्ट. इसके लिए देखो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, जब आप डायरेक्टली अगर कॉपी करेंगे तो देखो आगे के कॉलम्स भी सेलेक्ट हो रहे हैं. इसे ऐसे कॉपी करके पेस्ट करोगे तो ऐसे आएगा. तो ऐसे नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, ऑल्ट यूज करेंगे. इफ यू प्रेस ऑल्ट बटन then this is only the column is selected, copy and paste. I will leave these two items because these items are not recurring items, so I'll leave it for now and include them back into income statement later on.
So I have just copied my 3 items of revenue. So it is my total revenue. Then here I need to type 2017 equal to 2017 plus 1. So you have to decide for how many years you want to forecast. So this area is for historical data. हिस्टोरिकल आप इसे एक बार सेंटर लाइन कर देंगे और बाकी के 5 साल को फिर से मर्ज करेंगे एंड यू कैन टाइप फोरकास्ट हियर. ओके, नाउ आई विल गिव इट अ कलर. जरूरी नहीं है कि जो फॉर्मेट मैं कर रहा हूँ एग्जैक्टली वही सेम फॉर्मेट आप भी करें. आपका फॉर्मेट मेरे फॉर्मेट से डिफरेंट होना चाहिए, बट थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान रखें. फॉर्मेटिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए एंड देयर इज नो डेफिनेशन फॉर प्रॉपर फॉर्मेटिंग. यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू वांट. ठीक है, उसके बाद ये सारे आइटम्स हैं, इनको मैंने कॉपी किया, इनको मैंने यहाँ तक कॉपी कर रहा हूँ 5 आइटम्स तक. ठीक है, पहले 5 आइटम मैंने कॉपी किए, इनको पेस्ट कर दिया. उसके बाद ये छठा आइटम मैं छोड़ रहा हूँ फॉर द टाइम बिंग. ये दोनों आइटम मैंने कॉपी कर लिए, पेस्ट कर दिए. उसके बाद देखो ये जो ट्रांजैक्शन रिकॉग्निशन और सेपरेशन ये आइटम है और एसेट इम्पेयरमेंट, इन दोनों को मैं इकट्ठा कर रहा हूँ अदर्स करके, अदर एक्सपेंसेस, क्योंकि ये 2 आइटम ऐसे जिनको मैं फोरकास्ट नहीं करूँगा. उसके बाद क्या आएगा मेरा टोटल एक्सपेंसेस. तो क्या करेंगे अभी हम, ठीक है, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे एबिट, फिर हमें चाहिए एबिटडा और फिर हमें चाहिए एबिट डेक्स. तो अभी सबसे पहले 2019 का डाटा लेके आएंगे. तो ये 3 आइटम मैंने कैसे कॉपी किए, ऑल्ट बटन होल्ड किया और तीनों आइटम को कॉपी किया, पेस्ट कर दिया. उसके बाद ये 2 आइटम मैं अभी के लिए छोड़ रहा हूँ. ये 5 आइटम्स को मैंने कॉपी किया, पेस्ट कर दिया. ये जो ट्रांजैक्शन है ये आइटम ये छोड़ दिया मैंने, इन दोनों आइटम को कॉपी किया और पेस्ट कर दिया. और अब ये जो दोनों आइटम इनको वापस जोड़ दूंगा. ये था 50 रुपये प्लस 2949. अगर थोड़ा स्पीड से हो रहा हो तो आप स्लो करके देख सकते हो वीडियो को. 2949, ठीक है. तो जो लास्ट में जो आइटम है ये आपका ये फाइनेंसिंग कॉस्ट, इसे मैं ईबीआईटी के नीचे इंटरेस्ट एक्सपेंस के तौर पे लिखूंगा. उसके बाद मेरा ईबीटी आ जाएगा. ठीक है, अब पिछले साल का भी डाटा कॉपी करते हैं. तीनों आइटम कॉपी किए, पेस्ट कर दिए, टोटल. उसके बाद ये 5 आइटम्स को मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया. ये छोड़ दिया मैंने ये वाला आइटम, क्योंकि इन 2 आइटम को, इम्पेयरमेंट को और ये ट्रांजैक्शन वाले आइटम को मैं इकट्ठा करूंगा. बिकॉज दीज 2 आइटम्स आई कैन नॉट फोरकास्ट, आई डोंट हैव एनी सॉलिड लॉजिक टू फोरकास्ट, सो आई विल कीप इट कांस्टेंट फॉर फ्यूचर. तो इन दोनों आइटम को मैं इकट्ठा कर देता हूँ, इन दोनों आइटम को मैं इकट्ठा कर देता हूँ. देखो ये जो आइटम है ना, फ्यूचर में 0 लिखने वाला हूँ मैं. ये दोनों आइटम फ्यूचर में 0 रखेंगे. तो इसको फोरकास्ट करने का मेरे पास कोई सॉलिड लॉजिक नहीं है कि मैं किस बेस पर इनको फोरकास्ट करूं. तो मैं इसे फ्यूचर में 0 रखूंगा. तो एक तो ये दोनों आइटम अलग अलग जाके 0 लिखता मैं, एक इनको इकट्ठा कर दिया और एक साथ 0 कर दिया. ठीक है, सेम अब काम करेंगे हम पिछले साल के साथ. 2017 का डाटा ये रहा, कॉपी किया, पेस्ट किया, टोटल निकाल लिया. और फिर ये 5 साल का डाटा कॉपी किया और पेस्ट किया. ठीक है, उसके बाद ये दोनों आइटम भी मैंने ऑल्ट के साथ सेलेक्ट करके कॉपी किए और पेस्ट किए. इक्वल टू 16 प्लस ये 8, इन दोनों को किया, फिर इन दोनों का टोटल. अब ये जो दोनों वैल्यूज हैं, ये जो हिस्टोरिकल डेटा है मैनुअली पंच है, इसको आप एक डिफरेंट कलर में डालिए ताकि फॉर्मूला क्या है और इनपुट क्या है उसका हमें पता लग सके. तो इसके लिए मैंने इनको एक लाइट कलर में डाल दिया, सेम इसको भी मैंने लाइट कलर में डाल दिया. तो जो मेरा फॉर्मूला है उसको कलर नहीं करेंगे हम. ये एक रूल है, कभी भी फॉर्मूले को कलर नहीं करते हम. जैसे ये हमने टोटल निकाला है ना, टोटल रेवेन्यू, इसे कलर नहीं किया. इसको देखते ही समझ में आ रहा है कि इसमें इनपुट क्या है और इसमें फॉर्मूला क्या है. उसके बाद ये ईबीआईटी निकालेंगे कि रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस, फिर एबिट प्लस ये डीडीएनए, एबिट डेक्स, एबिटडा हो जाएगा.
उसके बाद EBITDA प्लस एक्सप्लोरेशन एक्सपेंस। ये अब इबिटडेक्स क्यों निकाल रहे हैं हम यहाँ पे? देखो इबिट और इबिडा तो हम निकालना ही होता है। इबिटडेक्स क्यों निकालते हैं? क्योंकि एक्सप्लोरेशन एक ऐसा आइटम है जो अलग अलग कंपनियां अलग अलग ट्रीट करती हैं। तो अगर दो कंपनियों के बीच में आपको कंपैरिजन करना हो तो इबिटडा के लेवल पे कंपेयर करने के बजाय हम इबिटडेक्स में कंपेयर करेंगे ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट एक्सपेंस। इंटरेस्ट एक्सपेंस और वो जो बाकी दूसरे अदर एक्सपेंस थे जो हमने छोड़ दिए थे वो, और फिर आपका आ जाएगा इबिट, ईबीटी। इसको आप प्री टैक्स इनकम भी कह सकते हो। तो शुरू करते हैं। फाइनेंसिंग कॉस्ट 462, 478, 397। इसके बाद ये जो एक्सपेंसेस थे हमने जो छोड़ दिए थे, ये जो भी है एग्जैक्ट वही उसी पैटर्न में हमें कॉपी कर लेंगे इसको। ये 43 प्लस 53, उसके बाद 23 प्लस 53, उसके बाद 627 माइनस 91। इन दोनों को भी मैं क्या कर देता हूँ, लाइट कलर दे देता हूँ, लाइक दिस। अब हम प्री टैक्स इनकम निकालेंगे कैसे? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंस प्लस ये वाला आइटम। ठीक है, नेक्स्ट। अब आइटम हमारे पास यहाँ पर क्या है देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, करंट इनकम टैक्स का प्रोविजन है और डेफर्ड इनकम टैक्स है, तो हम इसको टोटल टैक्स लिख देते हैं यहाँ पे। इनकम टैक्स एक्सपेंस एक साथ कर देंगे इक्वल टू 595 माइनस 1180, आफ्टर दैट 894 माइनस 222, देन 660 प्लस 14। इसको भी मैं एक लाइट कलर दे देता हूँ, लाइक दिस। अब हमारे पास आएगा ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो इसको कैसे निकालेंगे? दिस माइनस दिस और फिर कंट्रोल आर। एक बार वैल्यू चेक कर लो कि मैच हो रही है नहीं हो रही, कोई किसी तरह का प्लस माइनस मिस्टेक ना हो जाए। देखो 1503, 1503, 286, 286, 3682 माइनस में, 3682 माइनस में। इसके बाद क्या करेंगे ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट इसने अलग से दिया हुआ है तो इसको भी हम इकट्ठा कर देंगे। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का दूसरा नाम क्या है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट का दूसरा नाम है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर देते हैं। 1999, 245 प्लस 1, 167 माइनस 334 प्लस 38। इसको भी हम लाइट बैकग्राउंड कलर कर देते हैं। और उसके बाद आपका आ जाएगा नेट इनकम आफ्टर माइनॉरिटी। इसके कई नाम है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि माइनॉरिटी, इसको आप क्या कह सकते हो? नेट इनकम एट्रीब्यूटेबल टू कंपनी, नेट इनकम एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी, आप इसको कुछ भी कह सकते हो। इसके बाद दिस माइनस दिस एंड देन कंट्रोल आर। एक बार ये भी चेक कर लेते हैं। 1304, 1304, 40 और फिर ये माइनस 3553, 3553। तो इसी के साथ हमने इस वीडियो में क्या डिस्कस किया कि इनकम स्टेटमेंट का डाटा एक्सेल में कैसे कॉपी करना है। ठीक है, अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि बैलेंस शीट का डाटा एक्सेल में कैसे कॉपी करना है। तो टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।